میرے جو پچھلے جمعے جو میں نے چند ایک باتیں بتائیں روزے کے بارے میں کہ روزہ یا روزے کا یہ موسم جو ہے یہ ہمارے لیے روحانی طور پر تر و تازہ ہونے کے لیے ہے، اور پھر روحانی طور پر مسیحی عقیدے میں خداوند یسوع مسیح میں جڑیں مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ آج کی جو تلاوتیں ہیں، دونوں تلاوتیں، پہلی تلاوت جو حکمت کی کتاب میں سے ہے اس میں دکھوں کے بارے میں، دکھ کے بارے میں کہ جو شخص یا انسان حقیقت پر ہے، سچائی پر ہے، اس کے لیے انسان ہی مشکل رستے بناتے ہیں، اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں، اس کی زندگی میں مشکلات لاتے ہیں، تو انسان ہی انسان کے خلاف منصوبے کرتا ہے۔ اور پہلی تلاوت جب اس کو ہم نے سنا تو ایگزیکٹ یہی لگ رہا تھا کہ یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اور یہ پیشن گوئی ہے خدا یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں کہ اس کے اپنے ہی اس کے لیے منصوبہ بنائیں گے، اسے صلیب چڑھائیں گے، اسے قتل کروائیں گے، اسے لعن طعن کریں گے، اسے مصیبتوں میں ڈالیں گے۔ تو پہلی تلاوت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ایسا منصوبہ تیار ہوگا کہ اسے قتل کیا جائے گا، لیکن جو آخری آیت ہے اس میں یہ ہے کہ جو بے گناہ ہے، جو سچا ہے، جس کی زندگی حقیقت پر ہے، اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا کہ یہودیوں نے، رومیوں نے یہ چاہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے تو یہ انسان ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نہ ختم ہوا، نہ وہ مرا، بلکہ وہ زمین میں سے بھی، قبر میں سے بھی جی اٹھا۔ جو حقیقی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، جو سچ ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے اسے دبا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہم اسے ختم کر دیں گے، اس پر الزام لگائیں گے، اور قانونی طور پر کہ یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اور یہ کہنا کہ میں بادشاہ ہوں یہی گناہ تھا، تو ثابت ہو گیا کہ خدا یسوع مسیح نے گناہ کیا ہے حکومت کے خلاف، ثابت ہو گیا، حکومت سچی ہوگی، انہوں نے اسے صلیب دے دیا۔ لیکن حقیقت میں خدا یسوع مسیح کون سی بات کر رہے تھے؟ وہ شیطان کی بات کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری بات ہے، اور انہیں تھریٹ تھا کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا بادشاہ ہے تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس بنا پر خدا یسوع مسیح کو قتل کیا، صلیب پر چڑھایا، دفنایا، لیکن خدا یسوع مسیح پھر جی اٹھتے ہیں۔ میں جب اس تلاوت پر غور و خوض کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دکھوں والا رستہ ہی کیوں؟ خدا یسوع مسیح کے لیے دکھوں والا رستہ، پھر وہ رستہ جہاں پر اسے تاج کانٹوں کا پہنا پڑے گا، یہی رستہ کیوں اپنایا گیا؟ خدا کے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا تھا کہ ایک ہی رستہ کہ اپنے بیٹے کو اتنی کم ترین سزا میں سے گزرتے دیکھتا ہے،
क्यों बेटा 40 दिन रोजा रियाजत करता है, भूखा रहता है, बियाबान में रहता है, फिर आजमाया जाता है? क्यों यही रास्ता अपनाया गया? क्यों यही रास्ता अपनाया गया कि वो सलीब पर मरे, लान तान हो? और कोई क्या खुदा के पास चॉइस नहीं थी? तो मेरे जो खुदा ने वो रास्ता अपनाया जो शैतान नहीं अपना सकता था। खुदा ने अपने बेटे के लिए वो रास्ता चुना कि जो शैतान के लिए नामुमकिन था। अभी खुदा यीशु मसीह जब लोगों से हम कलाम होते हैं तो वो माफी की बात करते हैं। ये अमल शैतान नहीं कर सकता है। खुदा यीशु मसीह सुलह सलामती की बात करते हैं, जबकि शैतान लड़ाई झगड़ा नफरत की बात करता है। खुदा यीशु मसीह कहता है कि एक गाल पर मारे तमाचा तो दूसरी फेर दो, लेकिन शैतान क्या कहता है कि बदला लेना है। तो खुदा ने अपने बेटे के लिए वो रास्ता चुना जो शैतान नहीं चुन सकता था। खुदा यीशु मसीह दूसरों के लिए सलीब उठाता है, शैतान ऐसा नहीं कर सकता था। खुदा यीशु मसीह दूसरों के लिए लानतान होता है, शैतान ऐसा नहीं कर सकता था। तो दुखों के इस रास्ते में से गुजरना इसलिए लाजम था ताकि शैतान हार सके, ताकि शैतान झूठा हो सके कि शैतान दूसरों के लिए नहीं है बल्कि वो अपने लिए है। खुदा यीशु मसीह अपने लिए नहीं है बल्कि वो दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए जान देता है, दूसरों को माफ करता है, सलीब पर अपनी जान कुर्बान करता है और दुख में सलीब पर यह कहता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे जो हम भी जब गुस्से में आते हैं तो बहुत कुछ कह देते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इंसान की अक्ल खत्म हो जाती है। तो समझें कि उस वक्त शैतान हम पर हावी होता है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो समझे कि हम फिर शैतान के कंट्रोल में हैं। खुदा यीशु मसीह सलीब पर मरने से पहले भी शैतान के कंट्रोल में नहीं आता है। जो दूसरी तरफ डाकू है वो क्या कहता है कि अपने आप को ही बचा, हमें भी बचा। शैतान, ये मंसूबे शैतान के हैं। शागिर्द भी एक दफा खुदा यीशु मसीह को ये कहते हैं कि आसमान से बाप से दुआ कर कि आग बरसे और तेरे ये दुश्मन सारे तबाह हो जाएं, गर्क हो जाएंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह माफी की बात करता है, जहां के शैतान नफरत, बदला, गुस्से की बात करता है। तो मेरे जो खुदा यीशु मसीह के लिए ये रास्ता जरूरी था, किस रास्ते पर से गुजरता जहां पर शैतान के लिए गुजरना नामुमकिन था। मेरे जो हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। इसका मतलब कि हमारी जिंदगियों से खुदा यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हमारी जिंदगियों से खुदा यीशु मसीह का अक्स नजर आना चाहिए, हमारे कामों से, हमारे अल्फाज से खुदा यीशु मसीह नजर आना चाहिए लोगों को। लेकिन शायद जब हम गुस्सा करते हैं, माफ नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह का अक्स हमारी जिंदगी से नहीं बल्कि शैतान का अक्स हमारी जिंदगियों में आ जाता है। तो अगर हम आज देखें कि जब हम माफ नहीं करते हैं तो खुदा यीशु मसीह की जगह कौन हमारी जिंदगी से जाहिर होता है। जब हम बदले की बात करते हैं कि मैंने बदला लेना है, तो फिर भी शैतान हमारी जिंदगी से जाहिर होता है। रोज़ों के इन अयाम में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अयाम, ये मौसम में दिया गया है कि अपनी जड़ें
शैतान में नहीं बल्कि खुदा में, मसीह में, मसीह ईमान में जड़ें मजबूत करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद शैतान के पंजों में आ जाते हैं, शैतान के मंसूबों में आ जाते हैं। चाहे हम रोज़ा रियाजत करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैतान की जड़ें हमारी ज़िंदगी में रह जाती हैं, और वही जड़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर मजबूत हो जाती हैं। तो जब दरख्त को ख़त्म करना हो तो उसको जड़ों से मुकम्मल तौर पर काटना पड़ता है। तो अगर शैतान को निकालना है तो उसकी जड़ों को भी काटना है। नहीं तो हम बहुत दफ़ा लोग कहते हैं जी मैं सिगरेट नोशी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन 1 2 3 4 दिन ऐसे करके तो कहीं ना कहीं फिर वापस उसी आदत में आ जाते हैं। तो मेरे जो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी सी रायत कर लेते हैं तो फिर वो रायत दोबारा वापस आ जाती है। जैसे इंजील मुकद्दस में ये कहा गया है कि जब एक दफ़ा बदरू चली जाती है तो अगर आप अपने आप को अच्छे कामों से भरपूर नहीं करते हैं, उस खाली जगह को भरते नहीं, तो फिर वो बदरू अकेली नहीं बल्कि अपने साथ और लेकर आती है, और ज़्यादा मजबूती के साथ आती है। तो मेरे जो ये छोटी छोटी जो आदतें हमें शैतान के साथ जोड़ती हैं, हमने इनको मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और रोज़ों के ये अयाम रोज़ा रियाजत के ज़रिए, दुआ के ज़रिए हमारी मदद करते हैं कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आदतों को जड़ों से निकालें, उनकी जड़ों को काटें, ताकि हम मसीह का अक्स बन सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी से मसीह ज़ाहिर हो सके। जैसे मुकद्दस फ्रांसिस, जिसे ये लक़ब दिया गया आईना मसीह, आईना यस्सु, यानी कि जिसे लोग देखते थे तो उसमें से खुदा यस्सु मसीह लोगों को नज़र आता था, तो उसे ये लक़ब दिया गया आईना मसीह। तो हम अपने आप को, दूसरों की बात छोड़ें, अपने आप को क्या लक़ब दे सकते हैं कि क्या मैं भी आईना मसीह हूँ? क्या मैं भी खुदा यीशु मसीह का अक्स हूँ कि जिसने माफ़ी की बात की, जिसने कबूलियत की बात की, जिसने दूसरों से बदला ना लेने की बात की है? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम मसीह का अक्स बनेंगे। हमारी ज़िंदगियों से, हमारे कामों से मसीह ज़ाहिर होगा। तो उसके लिए जैसे खुदाम यीशु मसीह को मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ा, हमें भी वो मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अगर मुश्किल रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं तो फिर ये भी ना सोचें कि आप आईना मसीह बन सकेंगे। अगर आप दुश्वार रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं तो फिर आप आईना मसीह नहीं बन सकते हैं। अगर कोड़े भी खाने पड़े तो फिर अगर शागिर्द कहें तो कोड़े भी खाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने कोड़े खाए गवाही देने के लिए कि हम मसीही हैं। इनकार के लिए उन्हें दावत दी गई, लेकिन उन्होंने इकरार किया कि हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे जो हमारी ज़िंदगी में तो छोटे छोटे काम कि जहाँ पर हम दूसरों को माफ़ करें, दूसरों से बदला ना लें, अगर हम ये छोटे छोटे कामों के लिए अपने आप को दुखों में डाल सकते हैं तो समझे कि हम आईना मसीह बन रहे हैं। नहीं तो आसान रास्ते शैतान के हैं। आसान रास्ते शैतान हमारे लिए पैदा करता है कि ये नहीं तो ये कर लें। तो मेरे जो जहाँ पर ये समझे कि आसान रास्ता है, आसान रास्ता मतलब कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो धोखा देकर पैसे कमा लें, ये आसान है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ पर आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं
लेकिन इसलिए कि मैं बदला लेना मैंने, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, तो शैतान ये दिखा देगा अभी रहिए रहन दे, अगले रोज़ा च माफ़ करा। तो ये शैतान के मंसूबे हैं। अगर हमने माफ़ करना है तो हमने अपने आप को छोटा करना है। खुदा यीशु मसीह ने माफ़ किया तो वो छोटा हुआ। अगर वो अपने आप को छोटा कर सकता है तो हम कौन होते हैं कि हम अपने आप को ये गवाही देने के लिए कि मैं मसीह का पैरोकार हूं इसलिए माफ़ करता हूं, किसी और काम के लिए नहीं, कि मसीह ने माफ़ किया तो मैं भी माफ़ करता हूं। तो ये मसीही ज़िंदगी की इक़्तिदार है जिनको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो इनके लिए हमें मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। शायद हमें यह भी कहें कि ये कमज़ोर है तो इसलिए इसने माफ़ कर दिया है, बदला नहीं ले सकता तो इसलिए माफ़ करके जान छुड़वा ली। लेकिन हमें पता है, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये वो रास्ता है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया है। ये वो रास्ता है जिस पर खुदा यीशु मसीह चला तो मैं भी चल रहा हूँ। उसने सलीब उठाई दूसरों के लिए, तो हमने माफ़ करके मसीही कदरों को दूसरों तक पहुँचाना है। ये वो कदरें हैं जो अंजीली कदरें हैं। शायद हम पाकलम हाथ में लेकर दूसरे को ना सुना सके, लेकिन जब ये कदरें, मसीही कदरें हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होंगी तो शायद हम किसी को आयात पढ़कर सुनाने से ज़्यादा ताकतवर मैसेज अपनी ज़िंदगी का दे सकते हैं। हम किसी को पाकलम पढ़ पढ़ के सुनाएं, जी ये आयत, मुझे ये भी आयत याद है, मुझे पुराने आयतनामे की याद है, लेकिन अगर किरदार वैसा नहीं है तो आयतें ज़ुबानी याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आयतें जो हैं वो किरदार से ज़ाहिर होनी चाहिए, आयतें हमारे अल्फाज से ज़ाहिर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सलीबी रास्ते से गुज़रना पड़ेगा, मुश्किल रास्ते से गुज़रना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम उसका आईना भी है, उसका अक्स भी है और उसके शागिर्द भी हैं। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे।